معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک جنگل کی دنیا لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس خوفناک آدمی نے پاسکل کو بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پاسکل کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی کمر سے ایک لمبا سا خنجر نکال کر اس کی گردن پر مارا تو پاسکل کے منہ سے خوفناک دل دوز چیخ نکل گئی جس سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک اور تیر کمان میں ڈالا اور اس خوفناک آدمی پر پھینک دیا۔ تیر سیدھا اس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ مارگریٹ ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے مارگریٹ سے چیخ کر کہا، مارگریٹ بھاگو۔ مارگریٹ کو جیسے ہی میری بات سن کر ہوش آ گیا، اگلے ہی لمحے وہ میری بات سن کر میرے ساتھ دوڑ پڑی۔ وہ خوفناک آدمی خونخوار نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے پیچھے آنے لگا۔ اس کے جسم اور آنکھ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکال لیا اور میں نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کیونکہ اس سے بھاگنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک بار تو وہ گر گئی اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر فوراً اٹھایا اور وہ بھاگنے لگا۔ اب کی بار میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے کافی دور آ گئے۔ ہماری سانس پھول چکے تھے مگر اس خوفناک آدمی سے بچنا ضروری تھا ورنہ اس نے بھی ہمیں مار دینا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد مارگریٹ بھاگتے بھاگتے گر گئی تھی۔ مجھ سے نہیں بھاگا جا رہا، وہ بے رت سانس کے اس دوران بولی، مارگریٹ اٹھو ورنہ وہ خبیث پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا۔ مارگریٹ بمشکل کھڑی ہوئی اور پھر ہم آگے کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم دونوں دوڑتے دوڑتے کافی دور نکل آئے تھے۔ مجھے یوں پاسکل کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اگر وہ خوفناک آدمی حملہ نہ کرتا تو اس خوفناک آدمی نے مجھے مار دینا تھا۔ پتہ نہیں ہم اس موت کے جزیرے سے کب نکلیں گے۔ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ جنگل میں اسی طرح موت کی سی خاموشی اور سنسانی پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مارگریٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک کھائی میں گر گئی۔ کھائی کی گہرائی 8 سے 10 فٹ تھی۔ اس پر چڑھ کر اوپر آنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ بنی ہوئی تھی۔ مارگریٹ چیخ رہی تھی، حمید مجھے بچا لو، بچا لو۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مارگریٹ مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں سینے کے بل لیٹ گیا اور اپنا ہاتھ نیچے کر کے مارگریٹ سے کہا، مارگریٹ ہاتھ پکڑو۔ مارگریٹ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا اور نیچے کی طرف جھکا مگر پھر بھی میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ مارگریٹ ہمت سے کام لو، میرا ہاتھ پکڑو۔ مارگریٹ اچھل اچھل کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر کئی بار اس کا ہاتھ میرے ہاتھ تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ میں گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کے ذریعے میں خود کو قابو کر کے مارگریٹ کو کھائی سے نکال لوں۔ ایک طرف مجھے چند لکڑیاں پڑی ہوئی دکھائی دیں۔ میں اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ میں لکڑیاں اٹھا کر وہاں آیا اور میں نے قریبی درختوں کا جائزہ لیا۔ وہ کھائی چند درختوں کے درمیان اس اندازے سے بنی ہوئی تھی کہ 2 درخت بالکل عین درمیان میں واقع تھے۔ میں نے ایک بڑی سی لکڑی ان 2 درختوں کے درمیان پھنسائی اور دوبارہ سینے کے بل لیٹ کر اپنے پاؤں اس کی لکڑی میں پھنسائے اور پھر کھائی کی طرف جھکنے لگا۔ ایک بار پھر مارگریٹ چلائی، حمید ایک سانپ نکل آیا ہے، حمید مجھے بچا لو۔ میں بلا خیزی سے اپنے جسم کو موڑتے ہوئے نیچے کی طرف جھک گیا اور ہاتھ نیچے کر کے مارگریٹ کو ہاتھ پکڑنے کے لیے کہا۔
मगर मार्गरेट ने उछल उछल कर मेरा हाथ पकड़ने की दोबारा कोशिश शुरू कर दी। मैंने देखा कि एक सांप जिसकी मोटाई 6 इंच और लंबाई 15-20 फुट से करीब थी, धीरे धीरे मार्गरेट की तरफ बढ़ रहा था। मार्गरेट का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब की बार वो उछली तो मैंने उसका हाथ मजबूती के साथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगा। उसे खींचते हुए मुझे सख्त ताकत का मुजाहरा करना पड़ा, ताहम मैं उसे ऊपर लाने में कामयाब हो गया था। मार्गरेट जैसे ही ऊपर आ गई, मैं धप से घास पर गिर गया। मेरा सांस फूल चुका था। शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो सांप उसे डस भी सकता था। मार्गरेट मुतशक्कराना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। उसने मुझसे कहा, हमीद, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो मैं शायद जिंदा ना रह सकती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हमने उठकर बैठते हुए कहा। ये तो मेरा फ़र्ज था। चलो अब निकल चलो, ऐसा ना हो कि वो खौफनाक आदमी फिर उस तरफ आ जाएं। हम दोबारा एक तरफ बढ़ गए। तीर कमान मेरे पास ही था। मेरे पास अब चंद तीर रह गए थे, ताहम अगर निशाने पर लगे तो वो थोड़े से तीर काफ़ी थे। अभी हम थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि अचानक एक जगह से गुजरते हुए मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा। मेरा जिस्म ऊपर की जानब उठता चला गया। ये देखकर मार्गरेट बुखला गई। मैं खुद भी हैरान और परेशान रह गया। ऊपर उठते ही मेरा जिस्म फिजा में झूलने लगा। वहाँ कोई रस्सी का जाल लगा हुआ था जिसकी जिद में मैं आ गया था। यूं झूलने से कई बार तो मेरा सर दरख्तों से टकराते टकराते बचा था। मार्गरेट परेशान कुन नज़रों से इधर उधर देख रही थी। ऐन उसी लम्हे एक तरफ से खौफनाक आदमी बरामद हुए। वो खौफनाक मुस्कुराहट से मुझे और मार्गरेट को देख रहे थे। मार्गरेट उन्हें देखकर एक तरफ खिसक रही थी। अगले ही लम्हे वो झाड़ी से निकलकर उलझी और गिर गई। वो दोनों खौफनाक आदमी मुझे देखकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। मालूम नहीं कि वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू करने के अंदाज से मैं समझ गया था कि वो मुझे शिकार करने के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी तवज्जो मार्गरेट से हट गई थी। मेरे दोनों हाथ अभी तक आज़ाद थे और तीर और कमान मेरी पुश्त पर लदे हुए थे। अब मैंने झूलना कम कर दिया। मैंने मार्गरेट की तरफ देखा। वो एक तरफ सहमी हुई झाड़ी में दुबकी हुई थी। बातें करते हुए उन दो और खौफनाक आदमियों में से एक ने अपनी कमान में तीर डाला और मेरी तरफ करके वो निशाना लेने लगा और फिर उसने उसी वक्त तीर मेरी तरफ छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ मेरी तरफ आया और ऐन उसी लम्हे मैंने अपने जिस्म को ज़ोरदार अंदाज में झटका दिया और मेरा जिस्म एक तरफ हो गया। उसी लम्हे तीर शाई की आवाज़ के साथ ही मेरे चेहरे के करीब से गुजरता चला गया। अगर मुझे ज़रा सी भी देर हो जाती तो तीर ने मेरी आंख फोड़ देनी थी। अपना निशाना खता होते देखकर वो खौफनाक आदमी गोसीली नज़रों से मुझे देखने लगा। अगले ही लम्हे उसने फिर अपनी कमान में तीर भरा और मेरी तरफ फेंक दिया। इस बार भी मैंने खुद को उसके तीर से बचाया और मैंने अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में घुमाया और तीर कमान निकाल कर उसमें तीर डालकर उस खौफनाक आदमी की तरफ फेंका तो तीर सीधा उसकी आंख में प्यूसत हो गया। वो डकराता हुआ पीछे हटा और उसने चीखते हुए अपनी आंख पर हाथ रख लिया। तीर उसकी आंख से निकलकर खोपड़ी के पीछे से निकल गया था। मैंने उसे संभलने का मौका ही ना दिया और दूसरा तीर चला दिया। मेरा दूसरा तीर उसकी टांगों में लगा और उसका दूसरा साथी खौफनाक और हैरतज़दा नज़रों से अपने साथी को देख रहा था जो मर चुका था। शायद उसे उसकी तवक्का ना थी। अगले ही लम्हे उसने अपना मुंह खौफनाक चीख निकाली और अपने हाथ में पकड़ी लंबे खंजर को लिए उस दरख्त की तरफ बढ़ा जिस दरख्त पर रस्सी बंधी हुई थी। वो शायद रस्सी को काटना चाहता था। मैंने उसका इरादा भांप लिया। वो रस्सी को काटकर मुझे नीचे गिराना चाहता था ताकि फिर वो आसानी से अपने साथी की मौत का इंतकाम ले सके। इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, उसी वक्त मार्गरेट ने हिम्मत की। उसने करीब पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी का डंडा उठाकर उस खौफनाक आदमी की पुश्त पर मारा। वो मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता हुआ मुड़ा और मार्गरेट की तरफ बढ़ने लगा।
मार्गरेट डर के मारे पीछे पीछे हटने लगी। मार्गरेट भागना ही चाहती थी कि उस खौफनाक आदमी ने खंजर से उस पर वार कर दिया, मगर खुशबख्ती से वो एक तरफ होने की वजह से बच गई और खंजर एक झाड़ी पर लगा, जिससे वो झाड़ी कट गई। वो दोबारा उसे मारना था कि मैंने कमान में तीर डालकर उस पर मार दिया। तीर उस खौफनाक आदमी की गर्दन में लगा। वो चलते चलते रुक गया। मैंने उसी वक्त दूसरा तीर उस पर चला दिया और दूसरा तीर उसके मुंह पर लगा और आर पार हो गया। वो ज़मीन पर गिर गया। मार्गरेट एक तरफ खड़ी थी। वो खौफनाक आदमी तड़प रहा था। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकत हो गया। वो भी मर चुका था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और मार्गरेट से कहा, मार्गरेट, इसके हाथ से खंजर निकाल कर रस्सी काटो। मार्गरेट डरती डरती उस खौफनाक आदमी की तरफ बढ़ी। शायद वो इसलिए डर रही थी कि कहीं वो दोबारा ना उठ खड़ा हो। उसने उसके हाथ से खंजर निकाला और फिर दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। उसने वो रस्सी काटी और धीरे धीरे रस्सी को छोड़ने लगी, जिससे मैं नीचे आने लगा। ज़मीन पर आते ही मैंने खंजर से रस्सी काटी और आज़ाद हो गया। मैंने मार्गरेट का शुक्रिया अदा किया। वो चारों खौफनाक आदमी ख़त्म हो चुके थे। अब हम दो ही बचे थे। हम वहाँ से निकले और सड़क पर पहुँचकर आगे बढ़ने लगे। हम शाम तक चलते रहे। अब हम जंगल से काफ़ी दूर आ गए थे। वो रास्ता सीधा जा रहा था। बहुत दूर हमें बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही थी। उस तरफ मुतअद्दद सड़कें इधर उधर जा रही थी। इत्तफाक से हमें दाईं तरफ एक जीप नज़र आई। मैंने उसे रुकने का इशारा किया तो वह जीप हमारे करीब आकर रुक गई। उसमें एक उधेड़ उम्र आदमी और उसकी बीवी बैठी हुई थी। हमने उसे सारी बातें बताई और उसने हमें अपने जीप में सवार करा लिया। जीप आगे बढ़ गई। उस उधेड़ उम्र आदमी ने हमें बताया कि हम इस वक्त जनूबी अफ्रीका के शहर में हैं। वो उधेड़ उम्र उसकी बीवी बहुत अच्छे लोग थे। वो हमें अपने घर ले गए। हम उनके घर में 3 दिन तक रहे। वहीं से मैंने अपने मामू को इमरान हबीब को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। 2 दिन के बाद मामू इमरान हबीब हमें लेने के लिए आ गए। अमेरिका पहुंचते ही मार्गरेट मुझे अपने घर ले गई। उसका घर बहुत खूबसूरत और शहर के पोश इलाके में वाक़या था। उसने बताया कि वो अपने पापा के मरने के बाद इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मेरे साथ पाकिस्तान चलना चाहती है। मुझे उसके पाकिस्तान जाने पर कोई एतराज़ ना था। चुनाचा मामू इमरान हबीब ने हमारे पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त कर दिया और फिर हम 2 दिन के बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।